Students, and welcome back again to our video tutorial. And in today's lecture we are going to talk about phylum Mollusca. Up to now we have completed the largest phylum, which is phylum Arthropod. We have completed 3 lectures on Arthropoda, and I have told you about general features of Arthropod along with the classification of Arthropod. So Arthropoda was the largest phylum of animal kingdom, and Mollusca, they are regarded as the second largest phylum. The very first thing, that the term Mollusca, it was coined by Dr. Johnston. So Dr. Johnston was the guy who coined the term Mollusca. As arthropod are regarded as animal with jointed appendages, Mollusca, they are commonly known as soft-bodied animal. Molluscans are commonly known as soft-bodied animals. And why we call that soft-bodied animal? Because a very characteristic soft layer, a characteristic soft fleshy layer is present in mollusk, and that soft fleshy layer is mantle. So mollusk word has been derived from the nature of soft body. So molluscans are soft bodied animal, and why they are referred as to soft bodied animal? Due to presence of a very soft layer, a soft layer which we call mantle. So characteristic layer of Mollusca is mantle. Characteristic layer or characteristic feature of arthropod was jointed appendages. Characteristic feature of annelid was metameric segmentation. Right? So other name of mantle, it is also known as pallium. So pallial layer or mantle layer, it is the characteristic layer of molluscians. Mollusca and arthropod is the largest phylum, and we have discussed about 70% of all the existing animals on this earth are arthropod. Molluscans are second largest phylum. They are second largest phylum. So another question which has been commonly asked about the soft-bodied animal and about second largest phylum, answer to both questions would be Mollusca. If you are not able to remember the name of Johnston, it doesn't make a big difference. Alright. Molluscans are evolved from where? Sir, हम पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले पॉलीफेरा था, then comes coelenterate, then comes ctenophore, platyhelminthes, escahelminthes, annelid, arthropod and mollusk. So technically, with that sequence, mollusk should be evolved from arthropod, but answer is no. Mollusca and Arthropoda both were evolved from Annelida. From phylum Annelida, there were certain animals which were evolved, and those animals are having jointed appendages, and that phylum is known as phylum Arthropoda. Other animals were also evolved from Annelid, and those animals were having soft body, and that phylum is phylum Mollusca. So from Annelida, there are 2 evolutionary chains which started. There is evolutionary change of the most diverse group of animal, Arthropoda. Second most diverse group of animal, Mollusca. There was a connecting link between Annelida and Arthropoda. And if you do remember, can you tell me the name of that connecting link which I told you? Yes, the connecting link is peripatus. Peripatus or platypus? It was peripatus. Platypus is a mammal actually, right? Similarly, there is a connecting link between Annelida and Mollusca, and that connecting link is Neopilina. So Neopilina is an animal which is having certain annelid-like character and certain molluscian character, and which give us an idea that Mollusca are not evolved from Arthropoda, Mollusca are evolved from Annelida. Does it make a sense? Okay. So next point, a very important point, that what is the connecting link between phylum Annelida and Mollusca? What is the connecting link between phylum Annelida and Mollusca? The answer to that question would be Neopilina. So Neopilina is the connecting link. Important thing to remember, it is the connecting link between, please don't go with arthropod here,
between Annelida and mollusca. Alright, आप ये भी याद रखेंगे, all the molluscans are unsegmented animal. The only exception to that segmentation is Neopilina. So Neopilina is the only segmented mollusk. Only segmented mollusk. And we have separate class for Neopilina. So later on in the next lecture, when we will be discussing about classification, I will be telling you the features of Alina which come from annelid and features of Neopilina which come from mollusca. So now it's time to start the general characters of phylum Mollusca. The introductory part is completed. That Mollusca is the second largest phylum. The term was coined by Johnston. They are commonly known as soft-bodied animal. And why we call that soft-bodied animal? Due to the presence of mantle or pallium. I will be telling you that mantle is secretory and protective in nature later on. In certain animal, it also acts as a respiratory organ. Neopilina is a connecting link between Annelida and mollusca. So without any delay, let us start the general features of phylum Mollusca and let us cover that part which is mentioned in our NCERT. So as we do with every phylum, first we will be discussing the textbook content and later on we will be learning new points and classes of that phylum. So general features of Mollusca. In general features, first we start with the habitat and habit. So habitat, like arthropod, they are also found easily and anywhere and they are having diverse of habit. तो जब habitat की बात करेंगे, अच्छा आप ये भी याद रखेंगे mollusca generally parasitic नहीं होते हैं. Generally ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल लेके कोई भी पैरासिटिक नहीं होगा. जो पैरासाइट होंगे उसको हम मेंशन कर देंगे. They can fight with their enemies. They can protect themselves after certain adaptation. तो जब habitat की बात करेंगे, molluscans are found everywhere. They are found in ocean. They are found on those. I told you something in Coelenterate. A very stable marine ecosystem is formed by cnidarians, and what we call that? Coral reef. They are found on coral reef. They could be found in fresh water, and last but not the least, they could be terrestrial as well. You must have learned about certain land snails. If you do remember about the life cycle of liver fluke, I told you about Lamnia and Planorbis, and they are commonly known as land snail. Even there would be certain other animals which visit land occasionally, like Pila or apple snail is an animal which live in both environment, land as well as water. So when it comes to habitat, they are commonly found in almost all the habitat. By habit, they are free living. By habit, generally, molluscs are free living. Alright, next, coming upon their level of organization. As I told you from SK helminthes, all the animals are having what kind of level of organization? They are having a organ system level of organization. Is that clear? Body wall, they are triploblastic in nature. No fun in telling that. We are already discussing a lot of triploblastic animals from the previous phylums. Coming on nature of coelom, they are true coelomate, and what we call that? Eucoelomate. And their coelom is identical like that of annelid and arthropoda. Annelid and arthropod have what type of coelom? Answer is schizocoelom. Similarly, molluscans, they also have schizocoelom. And what is schizocoelom? When coelom is formed by the splitting of mesoderm. So their coelom is schizocoelom. Alright, सर आपने ये भी बताया था कि आर्थ्रोपोड के अंदर सीलोम जो है वो रिड्यूस हो जाता है. एक ट्रू सीलोम से कुछ हिमोसील वाला पार्ट रह जाता है जिसको हम बॉडी कैविटी कह रहे थे मेजरली, और बाकी जो ट्रू सीलोम है वो उनके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ऑर्गन पे चले जाते हैं. क्या इनके पास भी ऐसा, उनके एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे चले जाते हैं? क्या इनके पास भी ऐसा होता है? आंसर इज यस. सीलोम इज रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड नियर टू हार्ट. सीलोम का वो पार्ट जो हार्ट के पास होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम. नियर टू पेरिकार्डियम.
then excretory organ and reproductive organ. Excretory organ and reproductive organ. What is the name? Other name for reproductive organ? We call that gonads. So coelom, likewise in arthropod, in molluscans, coelom is also reduced, and that is reduced near to heart, near to excretory organ, and near to reproductive organ. So molluscans are found everywhere, free living animal having an organ system level of organization, triploblastic by nature, and true coelomy. Now comes on their body symmetry. Previous animal which you have discussed were arthropod. And what type of body symmetry you have discussed in arthropod? Your answer should be bilateral. बल्कि आप ये कहेंगे कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री अटेन हुई थी, और प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर अभी जितने भी एनिमल पढ़ते जा रहे हैं सबके पास ही बाइलेटरल सिमेट्री है। लाइकवाइज मोलस्का के पास ही बाइलेटरल सिमेट्री होगा, बट देयर इज अ ग्रुप ऑफ मोलस्क, अ क्लास ऑफ मोलस्क जिनके अंदर जो प्राइमरी सिमेट्री होती है वो तो बाइलेटरल होती है। प्राइमरी सिमेट्री का मतलब हुआ कि जब उन्होंने डेवलपमेंट शुरू किया तब तो बाइलेटरल सिमेट्री था, पर डेवलपमेंट के दौरान उनके बॉडी के अंदर ट्विस्टिंग हो जाता है, टॉर्शन हो जाता है, और टॉर्शन की वजह से सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है। तो एडल्ट मोलस्क, कुछ एडल्ट मोलस्क, नॉट ऑल, they lost their symmetry and they become asymmetrical. So let me mention here body symmetry. The primary body symmetry, primarily the body symmetry is bilateral. Alright, that very easy and simple to understand. Now this thing is important in members of gastropod. So who are gastropods? गैस्ट्रोपोड इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का। देखो गैस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है स्टमक एंड पोडा रेफर्स टू लेग। तो जब वो डेवलप करते हैं उनके जो लेग थे वो स्टमक के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी और टॉर्शन। और ट्विस्टिंग से पहले बाइलेटरल सिमेट्री था, मतलब बॉडी पार्ट जो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड थे और उसको सैजिटल सेक्शन से आप कट कर सकते थे। पर जब ट्विस्टिंग होता है तो बॉडी का जो हेड है, जो लेग्स है, वो सब एक ही तरफ आ जाते हैं। फिर आप किसी भी प्लेन, किसी भी एक्सिस से उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे और उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल एनिमल। सो इन मेंबर्स ऑफ गैस्ट्रोपोड, ड्यू टू, नाउ दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड इन अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, टॉर्शन, ड्यू टू टॉर्शन और ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी, टॉर्शन और ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी, ड्यू टू टॉर्शन or twisting of body, symmetry is lost. Symmetry is lost, and adult gastropod are asymmetrical. That is, adult gastropod, Phyla is the classical example of gastropoda. Phyla is apple snail. Adult gastropod become asymmetrical. So here you will remember that asymmetrical condition is a secondary condition. The primary condition was bilateral symmetry. So it is very important to mention here that asymmetrical, it is secondarily. If I am not wrong, in the basis of classification, when we were discussing about the symmetry, I must have mentioned that all the mostly sponges are asymmetrical and gastropod are asymmetrical. So from that concept you can remember, और अगर नहीं याद आ रहा है तो from here you can remember कि भाई जो मोलस्का होते हैं उनमें ज्यादातर एनिमल का सिमेट्री बाइलेटरल रहता है। सबसे बड़ा क्लास होता है गैस्ट्रोपोडा, और गैस्ट्रोपोडा के जो यंग वन है उनका सिमेट्री बाइलेटरल है, पर जब वो डेवलप करते हैं उनकी बॉडी में टॉर्शन हो जाता है, ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी की वजह से उनके जो लेग है, जो वो आगे स्टमक में एम्बेड हो जाते हैं और उनका सिमेट्री लॉस हो जाता है, तो एडल्ट जो है वो एसिमेट्रिकल है। डन अप टू हियर, आई थिंक इट मेक्स अ सेंस। नेक्स्ट पॉइंट, let us talk about their body wall. We have discussed about the body layers. We have discussed. I will be telling you about body wall कि उनके ऊपर सिलिया होता है या नहीं होता है, सेगमेंटेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, एंड देन बॉडी डिविजन्स के बारे में। उसके बाद एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ मोलस्क बना के समझ लेंगे कि मोलस्क के जो बॉडी डिविजन्स है वो कैसे कैसे हैं।
हम जो डायग्राम बनाएंगे वो हाइपोथेटिकल है कि भाई ऐसा बॉडी एनिमल का बॉडी होगा, वैसा कोई भी एनिमल नहीं होता टू बी एग्जैक्ट। वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपके डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट बॉडी वॉल। जब बॉडी वॉल की बात करते हैं तो इनके पास सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है। दे आर हैविंग अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। देन आप ये भी याद रखेंगे उनके पास जो मसल्स होती हैं वो अनस्ट्रेटेड होती है, और मसल्स ऑल थ्रू द बॉडी वॉल प्रेजेंट न होकर बंडल्स में प्रेजेंट होती हैं। दे आर हैविंग अनस्ट्रिप्ड मसल। अनस्ट्रिप्ड मसल इज द अदर नेम ऑफ स्मूथ मसल, राइट, which are present in bundles, right? All right, you will also mention here that the body of mollusk is unsegmented. Molluscians are unsegmented animal. I am repeating this thing again and again in order to ensure that you are not going to forget it. Molluscians are unsegmented animal with the only exception of Neopilina. And Neopilina is the connecting link. I will be telling you that Neopilina is also a living fossil and that is not undergoing any evolutionary change for millions of years. Alright. Okay, now the body divisions. Arthropod body was divided into head, thorax and abdomen. Similarly, the body divisions in case of mollusk, they are not like arthropod. They are having a head. Head might be absent in certain classes, we will be discussing. Second part is a hump. Hump समझते हैं आप लोग, कैमल हम्प आपने देखा होगा। तो ऐसा ही मोलस्कियंस के अंदर एक आउटग्रोथ बन जाती है ऑन द डोर्सल साइड। आउटग्रोथ बन जाती है ऑन द डोर्सल साइड, और डोर्सल साइड पे कोई आउटग्रोथ हो, कोई पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम्प बोल देते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। सेकंड वुड बी विसरल हम्प। जो विसरल वर्ड यूज करते हैं बेटा वो इंटरनल ऑर्गन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन योर बॉडी आई कैन सी योर आईज, आई कैन सी योर ईयर्स, आई कैन सी योर नोज। दे आर नॉन विसरल ऑर्गन विच आर एक्सटर्नली विजिबल। आई कांट सी योर किडनीज, योर लिवर, योर हार्ट, so these are visceral organ. So visceral hump is a structure, a sac-like structure where internal organ would be situated. And third part, visceral hump is present on the dorsal side. Visceral hump is present on the dorsal side. On the ventral side, there is a muscular foot. On the ventral side, there is a muscular foot, which is a characteristic feature of mollusca in non-chordate. So ventral muscular foot and dorsal visceral hump. Alright. Head जो होगा उसके पास sensory structure होंगे. In sensory structure there would be tentacles. टेंटकल्स आर लॉन्गर स्ट्रक्चर। जो रिड्यूस टेंटकल होते हैं उनको बोलते हैं पैल। पैल को टेंटकल आपको एनिलिडा में पढ़ा दिए थे जब मैं नरीज के बारे में बताया था। साथ में सिंपल आईज होती है मोलस्का के पास, कंपाउंड आईज नहीं होती हैं। तो टेंटकल्स, पैल और आईज ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द हेड। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको कौन कवर करता है? विसरल हम्प। एंड द थर्ड वन, लोकोमोशन के लिए, क्रॉल करने के लिए, ड्रैग करने के लिए अपने आप को, उनके पास एक वेंट्रल साइड पर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फुट, एंड दैट इज मेंट फॉर लोकोमोशन। तो ऑल द डिविजन्स एंड डिविजन्स के फंक्शन भी मैंने मेंशन कर दिए कि हेड के पास सेंसरी स्ट्रक्चर होंगे, विसरल हम्प इंटरनल ऑर्गन को कवर करेगा, और मस्कुलर फुट लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, अब एक हाइपोथेटिकल सा डायग्राम बना लेते हैं मोलस्का का, एंड लेट मी शो यू कहां पर हेड होता है, कहां पर विसरल हम्प होता है, कहां पर फुट होता है, और उसमें मेंटल भी शो कर देंगे। तो मेंटल पढ़ने के बाद मेंटल के फंक्शन भी देख लेंगे कि भाई मेंटल का फंक्शन क्या होता है। चलो मैंने सॉफ्ट बॉडी तो बता दिया। यू नो मोस्ट ऑफ द मोलस्का के ऊपर एक शेल भी होती है। मोस्ट ऑफ द मोलस्का के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। तो कुछ ऑथर्स कुछ किताबों में उनको शेल एनिमल भी लिख देते हैं। तो शेल कौन बनाता है, शेल कहाँ प्रेजेंट होती है, किन एनिमल में शेल नहीं होती है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्का। तो अगर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर देखें, लेट्स से एंटीरियर साइड पर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेड, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेड, और उसके ऊपर ये जो लॉन्ग बड़े से आउटग्रोथ है, व्हाट वी कॉल दैट, लेट्स वी कॉल दैट टेंटकल,
और टेंटाकल के पास छोटे से आउटग्रोथ हो गए, लेट्स कॉल दैट पैल। ये एंटीरियर पार्ट हो गया, यहाँ पर ये ओपनिंग है एंड दैट ओपनिंग वुड बी माउथ, दैट ओपनिंग वुड बी माउथ, और ये यहाँ पर हो गया उसका पोस्टीरियर पार्ट। इज दैट क्लियर? नाउ दिस पार्ट वुड बी एक्सटेंडिंग लाइक दिस, तो ये एंटीरियर साइड का पार्ट हो गया और पोस्टीरियर साइड का पार्ट हो गया, राइट? एंड इट इज मेकिंग अ कैविटी समथिंग लाइक दिस। लेट्स वील बी मेंशनिंग अ नेम फॉर दैट कैविटी एज वेल। कैविटी थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको छोटा कर लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ कैविटी व्हिच हैज बीन लाइक दिस, इट इज गोइंग अपसाइड, ऑलराइट, फाइन। सो जो माउथ होगा उसके बाद एक कैविटी आ जाएगा। माउथ इज फॉलोड बाय व्हिच कैविटी? वी ऑल नो दैट आवर माउथ इज फॉलोड बाय बक्कल कैविटी। आफ्टर बक्कल कैविटी देयर वुड बी सो कॉल्ड esophagus, then a sac-like structure, let's call that sac-like structure, let's call that stomach, then stomach के बाद intestine शुरू होगा and that is the coiling of intestine which is like this. So let's say this is small intestine वाला part here and here that is large intestine, and in this cavity it would be opening like this. ठीक है बेटा, तो एक हाइपोथेटिकल से स्ट्रक्चर बना लिया है और इस स्ट्रक्चर में आई विल बी मेंशनिंग कौन सा पार्ट क्या होता है। इस स्ट्रक्चर में आई विल बी मेंशनिंग व्हिच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट। देखो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था, ये जो ये पार्ट होता है बॉडी का जो नीचे की साइड होता है दैट इज वेंट्रल और डोर्सल, दैट इज वेंट्रल साइड। और वेंट्रल साइड पर क्या होगा? दिस पार्ट वुड बी ए मस्कुलर फुट, दिस पार्ट वुड बी ए मस्कुलर फुट। नो फन इन टेलिंग, it's easily understood. All right, this part fine. There are two simple eyes which are present here. Let's say this here is head, these are tentacles. Tentacles are also followed by these are tentacles. Tentacles के साथ यहाँ पर और क्या होगा बेटा? Pal. These are eyes here, and this whole area is visceral organs. So this area which is covering all the visceral organs, that called it visceral hump. That is stomach. This is intestine, and no fun in telling this is anus here. This is anus here. एक hypothetical diagram clear हुआ? All right. Now from the anterior to posterior side, I am making something in red. Let me show you where is mental. From here, a very fleshy stand for fleshy word stand for a structure which is made up of muscles. You know, meat and flesh both are the same thing. And what meat is made up of? Meat is made up of bones or muscle. Those who love to eat chicken, they must be knowing that meat is made up of muscles, and within the muscles there are bones which are present there. Anyways, this part here which is in red, that part is mental. A very soft, fleshy, muscular structure which cover the body from the dorsal side. From the dorsal side, it is meant for protection as well. It is soft, but it is meant for protection. And this layer in red is mental. This layer in red is mental here. So mental और pallium क्या definition होगा? What would be the definition of mental or pallium? Mental or pallium is a fleshy, muscular. It is not very much rigid. It is very soft layer present in whom? Present in mollusca. तो जिसके पास मेंटल है वही मॉलस्क है, जिसके पास मेंटल है वही मॉलस्क। अब ये जो मेंटल होता है ये एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक लेयर बनाता है। जो मेंटल होता है वो अपने ऊपर हमेशा ऊपर नहीं, कई बार ना आई विल बी टेलिंग यू डाउन साइड व्यू बना लेगा। तो जो भी करेक्टरिस्टिक लेयर है क्या तो वो एक्सटर्नल होगी या वो इंटरनल होगी, और कुछ एनिमल में नहीं भी बनाएगा। दिस मेंटल secretes a very characteristic layer. Okay, let me go on the basics of your science classes. Everybody may have heard about pearl. आप सब लोगों ने pearl या मोती के बारे में पढ़ा होगा या सुना तो होगा। तो सुना भी है, पढ़ा भी है और हम तो यूज भी करते हैं। ग्रेट।
तो जो पर्ल होता है वो केमिकली कहाँ का बना होता है? केमिकली पर्ल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको पता है कि पर्ल कौन से एनिमल बनाते हैं? देयर आर सर्टेन मोलस्क व्हिच आर वेल नोन फॉर द सिक्रेशन ऑफ पर्ल। देयर आर सर्टेन मोलस्क व्हिच आर वेल नोन फॉर द सिक्रेशन ऑफ पर्ल। और ये शेल होती है, इससे ही पर्ल बनता है। तो पर्ल को डिस्कस करेंगे हम क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में जब पिलीसाइपोडा के बारे में पढ़ाऊंगा या बाइवेल्विया को डिस्कस करेंगे तो आपको बताया जाएगा इसमें से कुछ मेंबर होते हैं जो अपने ऊपर एक आउटर शेल बना लेते हैं और कई सालों के बाद वो प्रीशियस पर्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप याद रखें कि मेंटल का पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। मेंटल किसके ऊपर होती है? क्या मेंटल एपिडर्मिस है या मेंटल एपिडर्मिस के ऊपर होती है? सर, मेंटल एपिडर्मिस के ऊपर होती है। तो लेट्स से दिस हियर इन डॉट वुड बी द सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस हियर, और उसके बाद मस्कुलर लेयर आ जाएगा जो आपने पढ़ा है। ऑलराइट, तो अगर आप ध्यान से देखें देयर इज ए स्पेस हियर बिटवीन मेंटल एंड एपिडर्मिस। और बच्चे ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी कहां होता है? मेंटल और शेल के बीच में? आंसर इज नो। मेंटल कैविटी होता है बिटवीन मेंटल एंड एपिडर्मिस। तो लेट्स कॉल दैट मेंटल कैविटी। व्हाट कुड बी द प्रोबेबल नेम ऑफ मेंटल कैविटी? दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो इसको पेलियल कैविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि मेंटल को हम पेलियम भी कहते हैं। तो दूसरा नाम क्या हो सकता है? पेलियल कैविटी। और जैसे कि ये हाइपोथेटिकल डायग्राम बना है, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है ये मेंटल कैविटी शो करने के लिए बताया था। मान लो ये आपका मेंटल कैविटी है, तो मेंटल कहाँ होगा? ये एपिडर्मिस है, और उसके बाहर यहाँ पे कहाँ होगा? दिस आउटसाइड शुड बी द मेंटल लाइक दिस, और ये मेंटल कैविटी होगी। इज दैट क्लियर? ओके, so first function was protection. First function of mental is protection. Second function, which has been discussed in exams, which is asked in your test paper, which might be asked in your assignment. Second function is the secretion of. Second function is the secretion of shell, and that shell is made up of calcium carbonate. Very, very, very important. That shell of mollusk is made up of calcium carbonate. And there is a very important protein, a very characteristic protein present in the shell, and we call that conchyolin protein. Conchyolin protein. So shell is made up of conchyolin protein along with calcium carbonate. And who makes shell? Mental makes shell. Who makes shell? Mental makes shell. तो ये shell हो गया। shell डोर्सल साइड पर होगा या वेंट्रल साइड पर? सर डोर्सल साइड पर। वेंट्रल पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेंट्रल तो मस्कुलर फुट है, वो सॉइल के अंदर डिग रहता है। ज्यादातर जो एनिमल होते हैं वो जब रेस्ट कर रहे हैं तो अपने आप को ना डिग करते हैं तो सॉइल के अंदर। अरे आपने देखा तो होगा ना, एक ना घर पे जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस यू आर यूजिंग समथिंग एट योर होम, जिसको ना हम एलिफेंट टच शेल बोलते हैं। एलिफेंट टच शेल, वो हाथी के दांत के जैसा जो रख लेते हैं घर में, रिमेम्बर? अब भाई जब वो पानी में है, सी के अंदर है, तब तो उसका जो नीचे वाला पार्ट है उस वाले में ही एम्बेडेड था। आपको बता दूं वो एक मोलस्क का है, वो असली हाथी के दांत नहीं है। तो कई बार घर वाले बच्चों को बोल देते हैं दैट इज योर एलिफेंट टूथ, ऐसा कुछ नहीं होता है। और काहे का बना है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। ओके, सो मेंटल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेयर, मेंटल इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन, मेंटल इज मेंट फॉर शेल, मेंटल इज मेंट फॉर द सिक्रेशन ऑफ शेल. Shell is made up of calcium carbonate, important thing to remember, and it also consists of conchyolin protein. Shell का जब हम पढ़ते हैं location, in majority of mollusks, shell is external. ज्यादा mollusks के अंदर जो shell होगा वो external होगा. तो ये भी मैं mention कर देता हूँ. Shell is external in majority, external in majority. देन कुछ ऐसे मोलस्क होते हैं जिनके अंदर शेल बाहर ना होके अंदर की साइड होती है। शेल बाहर ना होके इट विल बी प्रेजेंट इनसाइड। अ इंटरनल शेल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ स्लग, इन केस ऑफ स्क्विड वी कॉल दैट लॉलिगो एज वेल। क्लासिफिकेशन में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन केस ऑफ कटल फिश। तो कटल फिश भी याद रखना, वो एक मोलस्क का होता है, वो कोई पाइशीज या फिशीज में नहीं आता है।
तो कटल फिश, स्क्विड एंड स्लग, ये 3 क्लासिकल एग्जांपल है ऐसे एनिमल के जिनके पास इंटरनल शेल होती है, और कुछ मॉलस्क के पास तो शेल होती ही नहीं है. इन सर्टेन मॉलस्क देयर इज नो शेल, इट इज एब्सेंट, शेल इज एब्सेंट इन केस ऑफ एक फिश है जो जिसकी शक्ल ना आपको बड़ी खराब सी लगती है. इट लुक लाइक ए डेविल. रिमेंबर डेविल फिश, और वी कॉल्ड इट ऑक्टोपस. इट इज नॉट ए फिश टू बी वेरी एग्जैक्ट. फिश जो आते हैं वो वर्टिब्रेट में आएंगे. तो सिल्वर फिश हो गया, जेली फिश हो गया, कटल फिश हो गया, डेविल फिश हो गया. आई एम जस्ट मेंशनिंग ऑक्टोपस. दे आर नॉन कोडेड, एंड कटल फिश एंड डेविल फिश दे आर मॉलस्क. तो भाई ऑक्टोपस के अंदर एब्सेंट होता है शेल, स्लग, स्क्विड और कटल फिश के अंदर शेल इंटरनल होता है, और मेजॉरिटी ऑफ मॉलस्क में शेल एक्सटर्नल होता है. तो व्हाट यू लर्न, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ mollusk? Presence of mantle, and due to presence of mantle, what do you call them? Soft bodied animal. Presence of shell, what do you call them? Shell animal. Do they have metameric segmentation? Answer is no. Which animal have metameric segmentation? Annelid have metameric segmentation, arthropod have metameric segmentation, and even chordata have metameric segmentation. And I even told you that annelid is having a true metameric segmentation. Arthropods are generally externally segmented, and chordates, and if I talk about my body, I am internally segmented. You can count the segments in my vertebra, in my ribs and so on. तो अभी आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन 3 एनिमल में याद रखें, एनिलिड, आर्थ्रोपोड एंड चॉर्डेटा. ऑलराइट. सो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक लेयर होता है. मेंटल के 2 फंक्शन, प्रोटेक्शन के साथ साथ वो शेल भी बनाता है. शेल इज आल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर, एंड शेल इज आल्सो हैविंग सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. फिर शेल का प्रेजेंस पढ़ लेना कि भाई एक्सटर्नल कहां पर होता है, इंटरनल कहां पर होता है, एब्सेंट कहां पर होता है. इतना डिटेल नहीं दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, बट एज वी आर कंपीटिंग फॉर रैंक 1, इतना तो पढ़ना बनता है. ऑलराइट. नाउ अब सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सिस्टम्स ऑफ मॉलस्क, कि भाई उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, न्यूरल, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव. यही पार्ट बचा है जनरल फीचर्स में. लेट अस टॉक अबाउट देयर सिस्टम्स. आई बिलीव कि अब तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही हैं तो यू बेटर नो व्हाट यू हैव टू डू. राइट. प्लीज कीप मेकिंग प्रॉपर नोट्स until or unless you are not writing anything. वो आपका टेम्पररी मेमोरी में भी स्टोर नहीं होगा. तो जो आपका विजुअल मेमोरी है उस पर डिपेंडेंट ना रहे. एक आदत बना लें कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उनको लिख कर पढ़ रहे हैं, ताकि टेम्पररी मेमोरी बन जाए, और शाम को जब आप रिवाइज करें तो कुछ अच्छे समझ में आ जाए. Alright, let us start with the digestive system in mollusk. तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है यहाँ पर. जो आपने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा, जो आपने एनिलिडा में पढ़ा, सिमिलर टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वुड बी देयर. ये तो बताने की जरूरत नहीं ना. दीज एनिमल आर हैविंग ए ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान. आई टोल्ड यू स्टार्टिंग फ्रॉम एस्केहालमेंथिस अप टू कोर्डेट, ऑल एनिमल्स आर ट्यूब विद इन ट्यूब. तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा कंप्लीट होगा. कैन यू टेल मी एनस कहाँ ओपन होता है? एनस ओपन्स वेयर? अरे भाई देख के ही बता दो. यस, एनस ओपन इन मेंटल. सर हमारी आवाज आप तक पहुंचती ही नहीं है. नहीं, मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोग बोल रहे हैं. देन यस, दे हैव एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इट वाज नो फन इन टेलिंग, बट आई शुड मेंशन हियर digestive glands are well developed. Digestive glands are well developed. Two digestive glands first evolved where? In annelid, और उसके बाद तो सबकी डेवलपमेंट होता ही जा रहा है. Are well developed. So called liver and so called pancreas भी डेवलप हो जाता है. उसके लिए एक कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं, हेपेटो वर्ड काहे के लिए यूज किया आपने? लीवर के लिए. पैनक्रिया वर्ड काहे के लिए यूज किया? पैनक्रियाज के लिए. हेपेटोपैनक्रियाज इज प्रेजेंट. ऑलराइट. तो ये हो गया उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. इससे ज्यादा अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. फिर पढ़ते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. देन लेट अस टॉक अबाउट देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक क्विक रिवीजन अगर आपको बताऊं, एनिलीड के अंदर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था कि सर उनके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाता है विद
विद द हेल्प ऑफ स्किन गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। फिर आर्थ्रोपोड में टू कंपनसेट अ वीक सर्कुलेटरी सिस्टम, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप हो गया था। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड थे उनके पास गिल्स हुआ करते थे। फिर जो आपके पास लिगुलस था उसके पास बुक गिल्स हुआ करते थे। स्कॉर्पियन स्काइडर में बुक लंग्स आ गए थे। और मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट और मेजोरिटी ऑफ आर्थ्रोपोड जो बचे वो कहां से एस्पायर करते थे? बाय ट्रैकिया। सिमिलरली इन केस ऑफ मोलस्क, जो इनका जब हम बात करते हैं मेजोरिटी ऑफ एनिमल के पास क्या है, तो मेजोरिटी ऑफ मोलस्क के पास फीदर लाइक गिल होते हैं। इनके गिल बाकी के गिल से अलग है, फिशेज के गिल से अलग है, आर्थ्रोपोड की गिल से अलग है। दे आर हैविंग फेदर लाइक गिल, और जो फेदर लाइक गिल्स है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं टीनिडियम। सिंगुलर इज टीनिडिया और वी कॉल्ड इट टीनिडियम। तो जो टीनिडियम वर्ड होता है सी साइलेंट, दैट इज फॉर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्क, दैट इज फॉर फाइल लाइक फीदर लाइक गिल्स फॉर मोलस्क। देखो अभी फाइल लाइक वर्ड से ना मुझे कुछ याद आया है, वो मैं जरूर बताऊंगा जस्ट इन ए मिनट। आई विल बी गोइंग बैक टू डाइजेस्टिव सिस्टम, और मोलस्का के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिस करके आ गए हम। विल बी गोइंग बैक, पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जस्ट मुझे याद दिला देने का वही बताना है। तो फीदर लाइक गिल होते हैं जिनको टीनिडियम कहते हैं। ये फीदर लाइक गिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फीदर लाइक गिल प्रेजेंट होते हैं इस स्पेस में। ये कौन सा स्पेस है? मेंटल कैविटी। अगर मैं यहाँ पर मेंटल कैविटी में बना के भी दिखाऊं आपको, तो जो इनका गिल होता है इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस। लग रहा है ना फीदर के जैसा? तो अब फीदर लाइक गिल इज प्रेजेंट इनसाइड मेंटल कैविटी। इन मेंटल कैविटी ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ऑल, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ऑल। कुछ एनिमल्स में जिनका मोड ऑफ लिविंग ना डुअल होता है, कभी वो चले जाते हैं आपके अर्थ लैंड पर, कभी चले जाते हैं पानी पर, तो रेस्पिरेशन भी ज्यादा मॉडिफाइड सा है, और कुछ लंग जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। पेयर्ड तो नहीं है, होता तो सिंगल है, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी सैक, और पल्मोन वर्ड इज फॉर लंग्स। इन केस ऑफ पाइला पल्मोनरी सैक इज डेवलप, तो जब वो लैंड पर आएगा टेरेस्ट्रियल हो जाएगा तो पल्मोनरी सैक से ब्रीथ करना शुरू कर देगा, और जो वापस वाटर में जाएगा तो उसके टीनिडियम और गिल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो दूसरा रेस्पिरेटरी होगा, आप पढ़ेंगे यहाँ पर। अब पल्मोनरी सैक याद रखना, पल्मोनरी सैक इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ मेंटल। पल्मोनरी सैक इज फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ मेंटल। मुझे ऐसे याद आ रहा है कि किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड हु गॉट pulmonary sac in case of paila? Paila is the other name of apple snail, snail जिसकी शक्ल एप्पल के जैसी होती है। ऑलराइट, तो उनके पास टीनिडियम होते हैं बच्चों, उनके पास pulmonary sac होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ एनिमल्स के पास, कुछ मोलस्क के पास जो मेंटल होती है वो भी गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। तो मेंटल इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ डेंटेलियम, इन डेंटेलियम ओनली, बाकी में नहीं। In dentalium, dentalium is the other name of elephant tusk shell. Elephant tusk shell. तो जो elephant tusk shell होता है उसके पास डेंटेलियम, elephant tusk shell, उसको पढ़ लेना अच्छे से। My handwriting is so bad, huh? Don't say my handwriting is bad. Elephant tusk shell is having mental. Paila is having a pulmonary sac along with टीनिडियम. Pulmonary sac is formed by modification of mental, and majority of mollusks are having टीनिडियम. ये उनका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब वापिस चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम क्या भूल के आए हैं? If you meet a mollusk, for example, you are meeting him. Mollusk could be dangerous, so meet them with your own risk when they are living. If they wide open their mouth, in the buccal cavity of certain mollusks, not all, in the buccal cavity of certain mollusks, an organ is present like this. As when you open your mouth, what is present in your buccal cavity? Sir, the floor of our buccal cavity is covered by tongue, and you can use your tongue in your communication, in your expression. Don't clean your teeth by your tongue, right? When mollusks wide open their mouth, there is a file-like rasping organ which is having a transverse rows
of chitinous teeth are transverse rows, transverse row का मतलब क्या हुआ समझ रहे हो आप, लाइंस ऑफ chitinous teeth, और इस ऑर्गन का नाम होता है रेडुला। तो हम रेडुला कहाँ लिखेंगे, वी विल बी मेंशनिंग रेडुला हियर। फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ रेडुला, व्हाट इज रेडुला? अ फाइल लाइक क्यों बोला, बिकॉज इट इज फोल्डेबल, रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग का मतलब समझते हो आप, जो किसी चीज को ग्रेस्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल होता है जब आप छोटे होते हो, थोड़े नॉटी हो, और आपको आइसक्रीम पार्टी पे कोई ले गया है, तो समटाइम्स यू हैव बीन यूजिंग योर टंग फॉर लैपिंग, और आप लैपिंग के साथ साथ जो आइसक्रीम वाला पार्ट है उसको रेस्ट करके अंदर लेके जा रहे हो। ग्रेस्पिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट देन रेस्पिंग। अभी आप दोनों सेम समझो, दे कैन रेस्ट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर टंग, ऐसे याद रखना। तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन हैविंग transverse rows of chitinous teeth, and that file-like rasping organ with transverse rows of chitinous teeth is known as radula. So radula is a characteristic feature of mollusks which is not found in other animal. ये बात अलग है कि सारे mollusks के पास रेडुला नहीं होता है। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा अबाउट मेंबर्स ऑफ क्लास पी साइपोडा और बाइवेल्विया, उनके अंदर रेडुला नहीं होता है। या फिर जब आपको लॉलीगो के बारे में पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा, इट्स एग्जांपल ऑफ सेफेलोपोडा, उसके अंदर भी रेडुला नहीं होता है। तो फॉर द मीन टाइम अभी याद रखें, व्हेन दे वाइड ओपन देयर माउथ देयर इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन हैविंग ट्रांसवर्स रोज ऑफ chitinous teeth, and that file like rasping organ is known as radula. Is that clear? Alright. क्या उनकी जो आईज होती है वो उनके हेड पे ऐसे दो पॉइंट होती है? आंसर इज नो। उनकी जो हेड है वहां पे ना कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर है, या तो मैं स्टॉकिंग वर्ड यूज किया था इन केस ऑफ क्रस्टेशियन। तो इनकी आईज भी यहाँ पर, जहाँ पे आईज होगी वहां पे ना कुछ आई एपलेटस होगा जिसके ऊपर ये फोटो रिसेप्टर है। सिंपल आई है जो विजन में हेल्प नहीं करती, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट डिटेक्ट करते हैं। तो जो फोटो रिसेप्टर होते हैं, जिसके ऊपर फोटो रिसेप्टर अटैच होता है, उसको बोलते हैं फोटो ऑर्गन। और दूसरा वर्ड आता है ओमेटोफोर। सो ओमेटोफोर इन केस ऑफ, अच्छा ये साइंस स्ट्रक्चर में भी एक बार रिपीट कर दूंगा मैं हेड पे। ओमेटोफोर दे कंसिस्ट ऑफ फोटो रिसेप्टर। हम आगे बढ़ते हैं वरना ये तो चीजें याद आती ही रहेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, एनएस ओपन इन मेंटल कैविटी, extracellular, hepatopancreas available and रेडुला is there। रेडुला क्लियर हुआ बच्चे? रेडुला एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसमें ट्रांसवर्स रोज ऑफ chitinous teeth होता है, तो चीजों को चबा के खाने में हेल्प करता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स होते हैं, टिनिडियम, पल्मोनरी सैक होता है विच इज इक्विवेलेंट टू लंग, एंड मेंटल भी रेस्पिरेशन करती है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं बेटा इनका थर्ड सिस्टम विच इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। Let me mention here about excretory system now. अगर थोड़ा सा रिवाइज करें कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफिडिया में क्या पढ़ा था, एनिलिडा में क्या पढ़ा था आपने? एनिलिडा में सर हमने पढ़े थे अलग अलग तरह के नेफ्रिडियाज, कुछ के अंदर तो बोट्रिडियल टिश्यू और कोलोरोगोजन सेल भी एक्सक्रीशन का काम कर रहे थे। फिर इवॉल्व हुए आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के अंदर मेल्फिजियन ग्लैंड, मेल्फिजियन टिब्यूल, नॉट ग्लैंड, मेल्फिजियन टिब्यूल मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे। मेल्फिजियन टिब्यूल अलग होते हैं, मेल्फिजियन बॉडी अलग होता है। तो मेंशन असाइनमेंट में क्वेश्चन भी डाला था ये। मेल्फिजियन बॉडी आपकी किडनी नेफ्रॉन के अंदर होता है जो ग्लोमेरुलर से बाउमेन कैप्सूल है, उस दोनों स्ट्रक्चर को मिला के बनता है मेल्फिजियन बॉडी, और इनका जो स्ट्रक्चर है मेल्फिजियन टिब्यूल है। एनीवेज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन मोलस्का। देखो ये डिस्कस हो चुका है पहले कि जो भी एनिलिडा के बाद आएंगे उनको हम शॉर्ट ऑफ मेटानेफिडिया कहते हैं, और एनिलिडा से पहले जो आएंगे वो नेफिडिया होते हैं। रियल किडनी तो डेवलप नहीं होती है मोलस्का में, बट सो कॉल्ड मोलस्कियन किडनी डेवलप हो जाती है। यही स्ट्रक्चर आगे चल के फिर किडनी बनी थी। इवोल्यूशन में यही स्ट्रक्चर आगे चल के किडनी बन जाएंगी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में लिखेंगे
nephritic system, or let's call that molluscan kidney. तो कई बार ना आपको ऑप्शन भी आ जाता है, मोलस्का एक्सक्रीट बाई, ऑप्शन इज नेफ्रीडिया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, कॉक्सल ग्लैंड और किडनी. तो आप आंसर करेंगे किडनी. मेटानेफ्रीडिया इज अदर नेम. और कुछ साइंटिस्ट ने इन किडनी लाइक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था. जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड रहती है सिलोम के साथ, विच ओपन इन ट्रू सिलोम. दिस किडनी लाइक स्ट्रक्चर ओपन्स इन मेटानेफ्रीडिक सिस्टम विच ओपन्स इन ट्रू सिलोम. ऑलराइट. अब कुछ ऑथर्स ने इन किडनीज को नाम दिए हुए हैं. कुछ ऑथर्स ने इन किडनीज को नाम दिए हुए हैं. कई बार उन नाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बोजेनस, बड़ा प्यारा नाम था उनका. तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर डिस्कवर किया उसको नाम दे दिया उन्होंने ऑर्गन ऑफ बोजेनस. देन दूसरे केबस, डॉक्टर केबस और डॉक्टर बोजेनस ने बताया कि भाई ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी लाइक हैं और ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है. कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो डॉक्टर बोजेनस ने डिस्कवर की थी, बाकी स्ट्रक्चर डॉक्टर केबस ने डिस्कवर की थी. ये दोनों अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स हैं. कॉमनली इनको मोलस्कियन किडनी कहते हैं. कॉमनली इनको मोलस्कियन किडनी कहते हैं. तो कंडीशन ये होगा, फॉर एग्जांपल केबस ऑर्गन ने कलेक्ट किया मटेरियल, इट हैज बीन कलेक्टेड बाय केबस ऑर्गन. केबस ऑर्गन ऑर्गन ऑफ बोजेनस को देगा, ऑर्गन ऑफ बोजेनस उसको बाहर एक्सक्रीट कर देंगे. जिनके पास दोनों है, जिनके पास एक होता है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास, कैसे प्रोनाउंस करते हो आप इसको, इसको प्रोनाउंस करते हैं उनियो. तो जो आपके पास यूनियो या उनियो होता है उसके पास सिर्फ केबस ऑर्गन होता है. पाइला के पास दोनों हो जाते हैं. पर आप अभी मोलस्का में ये याद रखें कि मोलस्का के पास मेटानेफ्रीडिया सिस्टम होता है जिसको किडनी कहते हैं, और ऑर्गन ऑफ बोजेनस या केबस ऑर्गन कहते हैं. बाय देयर मोड ऑफ एक्सक्रीशन, क्या तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, आइदर दे आर अमोनोटैलिक और दे आर यूरिकोटैलिक, और दे आर यूरिकोटैलिक. यूरिक एसिड भी बनाते हैं मोलस्का. तो कितने सिस्टम हो गए बच्चों? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी. अब पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. सर्कुलेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव, 3 सिस्टम हो बच्चे हैं. ठीक है. लेक्चर इज नॉट बीइंग लेंथी ना, लेंथी भी होता है. ओके, there is a change in your exam date if you are aware about it. Your exam is rescheduled and now it would be on 8th of June. So it's a very good opportunity for those students which joined late, the new admissions. Please go through the all lectures of Animal Kingdom one by one. I guess 21 lectures or 20 lectures has been uploaded for Animal Kingdom only. And please solve all the assignment. If you are not having assignment, ask me for them and make your preparation very strong. It's your golden chance. This is for everybody. It's your golden chance to hit a 360 in biology this time. So you are having more than 10 to 12 days. Today is 25th, right? Today is 25th. You still got 6 plus 8, 14 days. And almost syllabus is completed for the test. Like mollusca, after mollusca we are going to discuss chironometer. So please make it sure you are going to read all the NCERT and attempting all the questions. Alright. Next is सर्कुलेटरी सिस्टम. तो बच्चे भाई जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मोलस्का में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के नॉलेज थोड़े याद कर लो. सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्का में जनरली ओपन होता है. जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है. और ओपन टाइप का मतलब क्या पढ़ा है आपने कि भाई उनके अंदर साइनसिस या लेक्यूने होते हैं और उन साइनसिस और लेक्यूने के अंदर ब्लड भरा होता है. और जो ब्लड फिल्ड कैविटी होती है उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं हीमोसील. और हीमोसील कहाँ से डेवलप हुआ है? हीमोसील डेवलप हुआ है फ्रॉम ट्रूसिलोम. नो फन इन टेलिंग. राइट. तो जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है उसके अंदर सेल्स आर डायरेक्टली बैथिंग इन ब्लड. प्लीज याद रख लेना. इस हीमोसील के अंदर कुछ ना इरेगुलर शेप्ड सेल होती है जिनको अमीबोसाइट कहते हैं. उनकी शेप इरेगुलर है. काम वो WBC का कर रहे होंगे. बट सब में ओपन टाइप ना होकर there are certain mollusks which also have closed type of circulation. जो क्लोज टाइप होता है, क्लास पढ़ेंगे, क्लास सिफेलोपोडा.
उसको बोलते हैं मोस्ट एडवांस मोलस्क। सिफेलोपोड ऑक्टोपस वाला क्लास, राइट, दे आर हैविंग अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सिफेलोपोड है हैविंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर इनका जो ब्लड होता है, क्या उनके अंदर पिगमेंट होता है? आंसर इज यस, उनके पास पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन इज प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। आरबीसी तो होती ही नहीं है इनवर्टिब्रेट में। हीमोसाइनिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, और हीमोसाइनिन की वजह से उनका जो ब्लड होता है वो स्लाइटली ब्लू हो जाता है। दे आर हैविंग ए ब्लूइश ब्लड। ठीक है सर, क्या इनके पास हार्ट होता है? आंसर इज यस, दे आर हैविंग ए पल्सटाइल हार्ट। और पल्सटाइल का मतलब ये हुआ जो पल्स जनरेट कर सके। देखो इनके अंदर वेन्स और कैपिलरीज नहीं होती, ओपन सर्कुलेशन है, पर कुछ ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं, वो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मोस्ट ऑफ द मोलस्क आर हैविंग ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सेल्स आर डायरेक्टली बैथिंग इन ब्लड, ब्लड कैविटी इज प्रेजेंट व्हिच वी कॉल हीमोसील। इसलिए हम पहले ही बता दें रिड्यूस हो गया था, तो मोस्ट ऑफ द बॉडी में क्या रहेगा? ब्लड फिल्ड रहेगा, वो हीमोसील होगा। हीमोसील के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है, तो जो गैसेस वगैरह है वो इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट भी होती रहती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्क इज हीमोसाइनिन, एंड ड्यू टू दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड इज ब्लू। रिमेंबर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। जो एडवांस मोलस्क होते हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, और वो कौन से होते हैं? सिफेलोपोड। तो सिफेलोपोड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और जितने भी बाकी के क्लासेस पढ़ेंगे नॉन सिफेलोपोड, दे आर हैविंग ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दे आल्सो हैविंग ए हार्ट व्हिच इज पल्सटाइल। जो कोडेट होते हैं अपन लोग, हमारा हार्ट कहाँ है? वेंट्रल साइड, इनका हार्ट डोर्सल साइड होता है। तो जैसा आपको पहले ही बताया था, जिनके पास भी हार्ट आप पढ़ रहे हो, दे आर हैविंग ए डोर्सल पल्सटाइल हार्ट। चैम्बर्स वगैरह हमें डिस्कस नहीं करने। ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। फिर आता है बेटा इनका न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट इज देयर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम तो देखो जैसा पहले से पढ़ते आ रहे हैं, गैंग्लियाज वगैरह ही होते हैं। इनके पास भी जो नर्वस सिस्टम है डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पेयर्ड गैंग्लियाज। नर्वस सिस्टम is represented by paired ganglias, paired ganglia और ganglion बताया ना, ग्रुप ऑफ नर्व सेल इज गैंग्लियन। अब ये जो पेयर्ड गैंग्लियन होती हैं बच्चे, ये डिपेंडिंग अपॉन अगर वो आपके पास लेट्स से वो आपके ना फुट रीजन में, आपके नहीं, इनके जो फुट रीजन में उनको हम पैडल कह देते हैं, पैडल गैंग्लियन। जो हार्ट के पास है उनको बोल देते हैं पेरिकार्डियल गैंग्लियन। हार्ट से याद आया, जो केबस ऑर्गन वाली स्ट्रक्चर है वो नियर टू पेरिकार्डियम होता है। केबस ऑर्गन इन यूनियो इज लोकेटेड नियर टू पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल गैंग्लियन। इज दैट क्लियर? तो पेरिकार्डियल हो सकती है, पैडल हो सकती है, एंड पेरीविसल हो सकती है, जो विसल हम में जो हार्ट से दूर है, पेरीविसरल। तो भाई पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं, आप अभी ये याद रखें। फिर आप ये भी याद रख लेना कि भाई जो भी लाइक गैंग्लियाज होती हैं वो कॉम्बिनेशन से कनेक्ट होती हैं, और जो अनलाइक गैंग्लियाज होती हैं वो कनेक्टिव से कनेक्ट होती हैं। ये कंसेप्ट पढ़ाया था प्लेटी हेलमैंथिस में, जब आपको लेटर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ाया था। तो जो जिनको ये समझ में आया हो तो प्लीज वो कॉम्बिनेशन और कनेक्टिव वाला कंसेप्ट वहां से रिवाइज कर लें। तो nervous system is represented by paired ganglions, depending upon the location. They are pericardial, they are perivisceral, and even they are pedal ganglion. And likewise and unlikewise they are connected with each other by lateral nerves. ठीक है बेटा। अब आता है इनका सेंसरी सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम में सबसे पहले इनके पास आईज होती हैं। आईज किसके ऊपर सिचुएटेड होती हैं? They are situated on ometophore, और याद रखेंगे आईज आर सिंपल। दे हैव ब्यूटीफुल आईज, आई डोंट थिंक दे आर ब्यूटीफुल। सिंपल आईज का मतलब वो बच्चे, दे ओनली डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, दे आर फोटोरिसेप्टर्स, राइट। टेंटेकल्स हैव
not olfactory actually, gustatory and touch receptor. Touch receptors are tactile receptors. Gustatory is for taste. They are present on tentacles and palp. They are present on tentacles and palp. फिर आपके पास आता है बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टेटोसिस. कोई बता सकते हैं स्टेटोसिस सबसे पहले किसमें डेवलप हुआ था? जो सबसे पहले फ्री लिविंग एक्वेटिक एनिमल रहे होंगे, जेलीफिश. कुछ बच्चे ने डाउट भेजा था शायद कि आर्थ्रोपोड में एनसीईआरटी में स्टेटोसिस लिखा है. देखो उसमें और डेवलप होता जाएगा, और डेवलप हो गया होगा. उसको ना लेथोसिस भी बोलते हैं. स्टेटोसिस्ट और लिथोसिस्ट that are well developed and that is in aquatic one and that is meant for balancing. फिर एक और स्पेशल इनके पास सेंसी स्ट्रक्चर जिसका मैं मेंशन करना चाहता हूँ रियली, और सवाल पूछा जाता है. द नेम इज ओडोंटोफोर. द नेम इज ओडोंटोफोर. ओडोंटोफोर एक्चुअली केमिकल रिसेप्शन करता है. केमिकल रिसेप्शन करता है. आई मस्ट से केमिकल सेंसेशन को परसीव करता है. कई बार होता है इन ऑर्डर टू check out the chemical taste of water and for the selection and rejection of food. कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, वो किसकी हेल्प से होता है? आंसर इज ओडोंटोफोर. सो ओडोंटोफोर इज द chemical receptive structure and that is the one which is meant for selection and rejection of food. Selection and rejection of food. So selection and rejection of food is done by odontophore. Please do remember this. And which organ, which structure is meant for sensing the chemical nature of water? Answer is odontophore. तो ये होगा बच्चे सेंसी सिस्टम के बारे में. The last part of general features is their reproductive system. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिंपल सा याद रख लेंगे कि भाई उनके पास जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मोलस्का. जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. देन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेक्सेस सेपरेट है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं. There are certain which are dioecious. And there are other which are monoecious. Monoecious is bisexual and dioecious is unisexual. तो कुछ एनिमल होते हैं जिसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, जो हर्माफ्रोडाइट है. एग्जाम्पल एप्लाइसिया एंड डॉरिस. जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कुछ देख लेंगे ये है कौन. अभी याद रखें वो बाइसेक्सुअल होते हैं. देन आप याद रख सकते हैं पाइला, यूनियो, सीपिया, लॉलिगो. दीज ऑल आर यूनिसेक्सुअल और डायोशियस. दीज सम प्रॉब्लम इन देयर स्पेलिंग्स, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं वो. खैर नेक्स्ट, तो सेक्सेस सेपरेट भी होते हैं और सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं. सेकेंड वन, उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, इट कुड बी एक्सटर्नल. इट इज जनरली एक्सटर्नल इन केस ऑफ एक्वेटिक एंड इट इज इंटरनल इन केस ऑफ दोज व्हिच आर लिविंग इन लैंड एनवायरनमेंट. ठीक है. फर्टिलाइजेशन it could be external or it could be internal depending upon their habitat. They are generally egg laying. They are generally oviparous. No fun in telling cause fertilization होगा. The last part, fertilization का ultimate result क्या होता है? Okay, 2 minutes more. The last part is that they are the one which are the last part, how they develop. Development in their case could be direct or indirect. अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं आएगा. ऑक्टोपस इज हैविंग डायरेक्ट डेवलपमेंट. पर अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा
तो उनके अंदर लार्वा आएंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कुछ मॉलस्क में एक एनिलिडा वाला लार्वा आ जाता है, जो कनेक्टिंग लिंक है उसके अंदर तो आएगा ही आएगा, बाकी जो नॉन कनेक्टिंग लिंक है उसके भी जो बच्चे हैं वो एनिलिडा के जैसे दिखते हैं, अपने पूर्वजों के जैसे। कौन सा लार्वा था? ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा इज प्रेजेंट इन मैनी। देन इसके अलावा दो और लार्वा याद रखने हैं, और वो किस एनिमल में होगा ये मैं मेंशन कर दूंगा। एक होता है बेटा वेलिगर लार्वा। जो वेलिगर लार्वा है दैट इज प्रेजेंट इन पाइला। तो पाइला, छोटे पाइला को क्या कहते हैं? इट इज वेलिगर। छोटा पाइला इज वेलिगर। एंड द सेकेंड वन, एक होता है ग्लोशीडियम लार्वा, अदर इज ग्लोशीडियम लार्वा। ग्लोशीडियम लार्वा, ग्लोशीडियम इज द नेम ऑफ छोटा यूनियो। ग्लोशीडियम लार्वा इज द लार्वा ऑफ यूनियो। तो भाई क्या तो ग्लोशीडियम या वेलिगर होता है? वेलिगर होता है पाइला के पास, ग्लोशीडियम होता है यूनियो के पास, या फिर ट्रोकोफोर लाइक लार्वा होता है। इसके बारे में याद रखना, ये छोटा सा ही बड़ा शरारती होता है, बड़ा होकर तो सुधर जाता है ये, पर जो लार्वा होता है इसके बारे में सवाल भी पूछा जाता है। ग्लोशीडियम लार्वा ऑफ यूनियो इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज। ग्लोशीडियम लार्वा ऑन यूनियो is an ectocyte on fishes. Glossidium larva on unio is an ectoparasite on fishes. तो बच्चों ये हो गए जनरल फीचर्स ऑफ मोलस्का के बारे में। तो मोलस्का जो होते हैं वो शेल्ड एनिमल होते हैं। मोलस्का इवोल्व हुए एनिलिडा से। नियोपेलिना इज द कनेक्टिंग लिंक। देन जो बाकी के फीचर्स बताए मेंडल के बारे में, शेल के बारे में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, feather-like gill for respiration, and then kidney for excretion, वो सारे फीचर्स आप याद रखें। Mental and shell is very important. So this is all for that lecture. I wish you a very good day. आप करना कि पहले लेक्चर को अच्छे से देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना। If you are understanding and liking the lecture, please hit the button. In the next lecture, we are going to start about classification of mollusca, and that will be uploaded day after tomorrow. So till then, take care of yourself. Have a good day and good luck. The class is dismissed. Thank you.